welcome to Santosh Sir classes. And let's start the suggestions and important questions answers journey for this June 2024 TE exam for MCOM IGNOU students. So we'll start with the IBO 01 International Business Environment, and this time we will try to find out the important questions in a different way. We will try to solve the last five terminal exam questions, and from there we will find out what are the important topics and questions that you must revise for this exam. So let me tell you, take you to the content of this material, and these are the solution that we are going to solve. The first one is for December 2023 and June 2023 exam. Then for 22, both exams for December and June, and for 2021 December exam. So this is what we are going to solve, and we will straight away, we will go in a, first we will see the important questions from December 2021, and let me take you to this part. Okay, now let's see. Now before we go ahead with this, let me tell you the composition. You'll be getting 4 comments to write. That the comments should be between 100 words, and then 4 questions, 20 marks each, long questions, and short notes, any 2 short notes out of 4. So this is the question paper of this December 2021 exam, and let's see what are the repeated questions that you got. Now there are different comments here, like this, as you can see on the screen, that these are the different types of comments you are required to write. Let's see the repeated questions that generally strike in the exam. This comment section is bit you have to go through the book and the entire material. Now this part B, what are the alternative methods of entering into the foreign market? You should revise this and also explain the merits and demerits of these alternative methods. And then this question, this is the solution of this question. As strategic alliances, its merits, demerits, then foreign direct investments, and now see here. This question number 3. This is the various laws that an exporter should take into account before executing the export contract. Now I have not written the solution here because it is already there in page number 8. That means it has come quite a number of times in the previous exam. This question you just can't leave out. The next one is the difference between tariff and non-tariff barriers, and the different types of non-tariff barriers that are used by the economies to restrict the international trade. So this question is also very common. Then what are transnational corporations or MNCs, and why firms become transnational, and its features, its merits and demerits. So these have come in the previous exam. And let's move on to the next question. Now this question is on REG, regional economic groupings, very very common question. You should revise its impact of regional economic groupings on the international trade. This question is also very important one. The next question number 7, the different types of unethical activities carried out by the MNCs. This question also comes quite a lot of times in the exams. So let's move on to short notes. Now you can see here all these short notes had come in the previous exams, like strategic alliances, IPR, intellectual property rights. GTPN is a very very common topic, so you must revise this. And GATS, this is also very common. General Agreement on Trade and Services. Okay, so this was December 2021 solution. ओके गाइज, लेट्स सी जून 2022 में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आए थे एग्जाम्स में. एंड लेट्स सी, लाइक दिस क्वेश्चन इंटरनेशनल, ये तो सारे कमेंट सेक्शन के हैं. कमेंट्स में कुछ भी आ सकता है, लाइक यू हैव टू रीड द एंटायर मटेरियल फॉर दिस, एंड एज मेनी एज 20 मार्क्स के तो आते ही हैं कमेंट्स. यहाँ से कमेंट कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी, लाइक दिस वन. सी,
growing foreign exchange reserves are not always an index of good health for an economy. So sometimes you get repeated questions in comments also. So पार्ट बी में देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये भी एग्जाम्स के लिए. एंड इसके एजम्पशंस लिमिटेशंस ये सारे आपको रिवाइज करने हैं. Then we have how do social, cultural and political environment influence international business. Give examples. ये environment से है, business international business environment से. And social, cultural and political इन तीनों के ऊपर से you can get any one of this, that is sure. Okay. देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस. ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट आपको दिख रहे हैं. Question number 4 part A, what do you mean by REG, regional economic groupings? Just now I was telling you about. ये काफ़ी टाइम एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन REG पे. एंड अगेन पार्ट बी क्वेश्चन भी REG पे है, इट्स इम्पैक्ट. एंड अगेन दिस वन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स का डिफरेंस. ये क्वेश्चन भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. एंड आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. Explain the factors that causes instability in the prices of the commodities in the international market, and what are the role of international commodity agreements in stabilizing the prices. You can revise this, but it's not very common, we can say. Rarely, I mean assignments में भी ये क्वेश्चन था. But this question number 7, ICC पे है, लाइक इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए द रोल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स. सो ये क्वेश्चन आपको रिवाइज करना चाहिए फॉर दिस जून एग्जाम. देन वी हैव स्ट्रेट अवे मूव ऑन टू शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स ईजी होते हैं लिखने के लिए. यू कैन राइट बाय योर ओन वर्ड्स ऑल्सो. एंड अगेन ये पहला जो शॉर्ट नोट है दैट इज़ ऑन द फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. काफ़ी कॉमन टॉपिक है. एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स इस एग्ज़ाम में मिला था. देन वी हैव GTPN पे है शॉर्ट नोट्स. GTPN वेरी कॉमन टॉपिक एंड इसको आप अच्छे से पढ़ें. देन वी हैव ऑन IPR, ये भी कॉमन टॉपिक है, हर साल एग्जाम्स में स्ट्राइक करते हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको नज़र आ रहे हैं फ्रॉम दिस एग्जाम. And that you should revise for the this June 2024 exam. Let's move on to December 2023 and यहाँ पे देखते हैं कुछ important questions. Long questions मैं आपको बता दूँ. And long questions will start from part B. Part A is the comment section. This is the part B. And ये question FDI पे है. The main features of FDI and difference between direct and portfolio investment. ये क्वेश्चन सबसे कॉमन है. ये काफ़ी टाइम एग्जाम्स में स्ट्राइक किया है IBO 01 के. एंड एज यू कैन सी हियर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रेफर टू पेज नंबर 26. दैट मीन्स बहुत बार पहले एग्जाम्स में आया हुआ है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. Then we have discussed the advantages and limitations of FDI for the developing countries. This is also very common question. Question number 3 देखते हैं. The different forms of ADR, Alternative Dispute Resolution Mechanism. ये भी क्वेश्चन काफ़ी कॉमन रहता है एग्जाम्स में IBO के. So do revise this properly. Then move on to short notes. As we can see here, strategic alliances पे है short notes. And then SDR, that is spatial drawing rights. ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम एग्जाम्स में स्ट्राइक करता है, जो कि UN IMF से रिलेटेड है. एंड द नेक्स्ट शॉर्ट नोट इज़ ऑन GATS, General Agreement of Trade and Services. This is also quite very common for the exam. एंड GTPN तो आई होप कि ये हर साल एग्जाम में स्ट्राइक करता है. ओके, आगे चलते हैं फ्रेंड्स. दिस इज़ जून 2023 के क्वेश्चंस एंड उसके सॉल्यूशंस. कमेंट सेक्शन में है. बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शंस में.
ग्लोबलाइजेशन, ये भी कॉमन रहता है हमेशा, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कमेंट है। एमएनसी के ऊपर अगेन कमेंट है। एंड और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके ऊपर कमेंट आपको करने के लिए बोला गया है। देन वी हैव ऑन लिबरलाइजेशन एंड ऑन द रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स, आरईजी, अगेन वेरी कॉमन टॉपिक। इसके बाद डिस्प्यूट्स, इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स पे है। तो इस तरीके से जब हम लोग रिवाइज करते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, तो ऑटोमेटिकली वी गेट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 बिजनेस एनवायरनमेंट से है। एंड हाउ होम कंट्री एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस फॉरेन बिजनेस ऑपरेशंस। काफ़ी टाइम एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन। एंड जो डोमेस्टिक कंट्री में जो एनवायरनमेंट होता है वो डेफिनेटली फॉरेन ट्रेड में आपको इट इन्फ्लुएंसेस, इट अफेक्ट्स द फॉरेन ट्रेड। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगेन अ वेरी वेरी कॉमन टॉपिक। एंड इसके मेन कंपोनेंट्स ऑफ करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स, द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, डिसइक्विलिब्रियम और उसके लाइक हाउ टू रिमूव और हाउ टू कंट्रोल चेक द डिसइक्विलिब्रियम। ये भी क्वाइट कॉमन होता है एग्जाम्स में। अगेन यहाँ पे देखिए आपको टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स में स्ट्राइक कर जाता है ये क्वेश्चन, तो इसको बिल्कुल रिवाइज करें। एंड उसके बाद में अगेन एमएनसी पे है कि वाई डू फर्म्स बिकम ट्रांसनेशनल और व्हाट इज़ एमएनसी, इसके कंट्रोवर्सीज क्या हैं, आई मीन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस फॉर द होम कंट्री, होस्ट कंट्री। ये सारे क्वेश्चंस आपको पक्के रिवाइज करने हैं। अगेन देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आरईजी पे, रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स, इसका इम्पैक्ट। एंड ये कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। यहाँ पे कभी कभी आपको यहाँ से इंटरनेट, आई मीन वर्ल्ड वाइड वेब, इन सब से क्वेश्चन मिल सकता है। वैन पे आप पढ़ सकते हैं। एंड द डिफरेंट टूल्स दैट वी यूज़ ऑन इंटरनेट, व्हाट इज़ इंटरनेट, इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस फॉर द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हैं शॉर्ट नोट्स की तरफ। यहाँ पे देखिए डिफरेंस दिया हुआ है, ये भी बहुत कॉमन टॉपिक है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में। ओके, ये क्वेश्चन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आपको दिया गया लिखने के लिए, तो ये भी ये क्वेश्चन भी बहुत ही कॉमन है। एंड देन वी हैव रोल ऑफ यूएनसीटीएडी, तो ये कमोडिटी प्रॉब्लम्स के ऊपर है। तो दिस क्वेश्चन ऑल्सो यूएनसीटीएडी पे काफ़ी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ईडीआई, नाउ ये तो आप जानते हैं, बहुत बार मैंने एक्सप्लेन भी किया है, इलेक्ट्रिक डेटा इंटरचेंज। एंड अभी तो या लाइक विद द इन्वेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, तो ईडीआई की तो इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको स्ट्राइक किए थे जून 2023 में। एंड इससे पहले वाला जो एग्ज़ाम हुआ था दैट इज़ दिसंबर 2023, आई मीन जस्ट जो अभी लास्ट कंक्लूड हुआ है क्वेश्चंस एग्ज़ाम, उसमें देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट आई मीन जो क्वेश्चंस। बेसिकली आपको अभी तक आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में मिलते हैं। पार्ट बी से स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी में अगेन ये कॉमन क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम्स में आ चुका है। हाउ होम कंट्री एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द फॉरेन बिजनेस, तो ये काफ़ी कॉमन है। एंड ये इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ कल्चर एंड हाउ दे अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, what are the factors that influence balance of payment, how disequilibrium occurs and what are the methods of correcting balance of payment। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ग्लोबलाइजेशन पे आप जरूर पढ़ के जाइए फॉर द एग्जाम, द डिफरेंट फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड हाउ इट अफेक्ट्स द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। देन वी हैव द डिफरेंट लॉज दैट एन एक्सपोर्टर टेक्स इनटू अकाउंट बिफोर कंक्लूडिंग द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। एंड दिस ये आपको शॉर्ट नोट में मिल सकता है, इसको यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में डाल दिया गया है। दैट इज़ ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो अगेन ये क्वेश्चन आरईजी पे है, व्हाट इज़ मल्टीलैटरलिज्म एंड हाउ इट अफेक्ट्स आरईजी ग्रुपिंग। तो मैं आपको बहुत बार मैंने बोल भी दिया कि आरईजी को आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। अगेन यहाँ पे डब्ल्यूटीओ और गट का डिफरेंस, ये भी
बहुत बार एग्जाम्स में स्ट्राइक करता है। डब्ल्यूटीओ का स्ट्रक्चर एंड इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस एंड द रिलेशन बिटवीन डब्ल्यूटीओ एंड इंडिया, तो ये सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको पक्के। शॉर्ट नोट्स पे देख सकते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एमएनसी टू द होस्ट कंट्री एंड होम कंट्री। Then the role of World Bank in promoting economic development and foreign trade in a country, ये भी important है question। Then we have again जो question है वो international trade disputes पे है। तो more or less अब देखेंगे जब आप एनालाइज करेंगे ये सब क्वेश्चंस, तो ये काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो बस एक मतलब 8-10 टॉपिक हैं जिसके ऊपर आपको बार बार क्वेश्चंस बनते हैं, मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जो ये टॉपिक्स हैं जो आपको रिवाइज करना चाहिए फॉर दिस जून एग्ज़ाम। एंड आई होप कि आपको अगर लास्ट 3-4 ईयर्स के 5 ईयर्स के अगर आप सॉल्व करते हैं अच्छे से, तो यू कैन गेट अ गुड परसेंटेज, गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। So friends, thank you for watching this video and a very best of luck for the exam.